Hello and welcome students of class 11th to the online lecture of the body fluids and circulation, that is the third chapter in your animal physiology class 11th. Clear? So we had discussed till now in the first lecture of this session of this chapter about the different kind of circulatory pathways, about what we are going to study in this chapter, and we had also discussed about the different type of circulation which are going on in the invertebrates as well as in the vertebrates. After that, we had discussed about the circulatory pathways, that is a single circulation, clear, and which is going on in your fishes or the pisces. Today we will be starting with the incomplete double circulation. That is, if I talk about the amphibians and reptilians of the total animal kingdom or the vertebrates, in them there is the presence of three chambered heart, और थ्री चेम्बर्ड हार्ट होने के कारण इनके अंदर जो सर्कुलेशन चलता है बेटा वो होता है yes the incomplete double circulation. Clear? So let's begin today's lecture. So as the slide in front of you, it says that we will be discussing about the incomplete double circulation, and mainly this type of circulation will be found in amphibians and your reptiles. Clear? So obviously this type of an incomplete double circulation will be requiring the presence of a three-chambered heart. Three-chambered heart. Clear? First of all. So what is happening over here? Now if I look into this diagram over here, then this will be the left auricle. This will be the left auricle, and this one will be the right auricle or the right atrium, as it is written, mentioned over here, right auricle. And this is the single ventricle which is present. So obviously it is the three chambers which we are discussing about, and we can see here generally three coloration is being mentioned, that is the blue one and the red one, and in between there will be this violet colored coloration. And why so, we will be seeing. First of all, we know that the left auricle always receives the oxygen rich blood after it has getting the exchange of gases is being getting completed or it is getting purified. So now this blood over here, this is oxygen rich blood, we can see. Clear? So this capillaries over here, we are having the exchange surface या exchange membrane through which the exchange of gases is taking place. Better to name it as respiratory membrane. Respiratory membrane, through which the capillaries and the respiratory membrane exchange of gases is taking place. Clear? O2 is getting inserted into the blood, and as a result CO2 is getting expelled out. So now this oxygen rich blood will be now passing from the respiratory surface of that particular respiratory organ. It can be gills, it can be lungs, or it can be the skin. Any of them can be the respiratory organ, and the respiratory organ के अंदर होगा एक respiratory surface जहां पे आपके exchange of gases चलेंगे. ठीक? जैसे ही आपका oxygenated blood अब सबसे पहले आएगा किसके अंदर? Left auricle के अंदर. तो यहां पर देखो बेटा लिखा हुआ है left जो auricle होगा या atrium होगा, it will be receiving oxygenated blood. ठीक है? कहां से? ना obviously आपके जो respiratory organ होगा वहां से, either the gills, lungs or skin. अब सिमिलरली जो राइट ऑरिकल होगा यहां पर आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है. सो दिस राइट ऑरिकल विल बी रिसीविंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑब्वियसली कहां से आएगा ना, इसके अंदर जो आपके बॉडी टिश्यूज है, बॉडी टिश्यूज जो होगा उस बॉडी टिश्यूज से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज CO2 रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड आपका आ रहा है हार्ट के अंदर. क्लियर है? फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स. हाउएवर जब ये दोनों पंप कर रहा है, मतलब जो लेफ्ट ऑरिकल है वो भी पंप कर रहा है इनटू द वेंट्रिकल, और जो आपके राइट ऑरिकल है दैट इज आल्सो पंपिंग द ब्लड इनटू
the single chambered ventricle. So obviously in the ventricle, the oxygenated blood and the deoxygenated blood is getting mixed up. और इसीलिए देखो यहां पर आपका एक कलरेशन भी चेंज आ रहा है, विच इज फॉर्मिंग बिटवीन द मिक्सिंग ऑफ द रेड एंड द ब्लू कलरेशन, ये समझाने के लिए कि यस यहां पर मिक्सिंग ऑफ द ब्लड इज टेकिंग प्लेस. ठीक, सो ऑटोमेटिकली जो आपका यहां पर ब्लड होगा, सो दे गेट मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल. सिंगल वेंट्रिकल के अंदर ये मिक्स्ड अप हो जा रहा है, और ऑब्वियसली जब वेंट्रिकल से आपका ये ब्लड बाहर आएगा, so then this will be, the ventricle will be pumping out mixed blood. ठीक है, क्लियर. सो इसके बॉडी टिश्यूज को जितना मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होगा फॉर देयर सर्वाइवल, उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमेशा नहीं मिल सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पर आपके मिक्सिंग ऑफ द ब्लड हो रहा है. ठीक, और इसीलिए इनको हम लोग नाम देते हैं, दे आर सेड टू बी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. They are said to be cold-blooded animals. Cold-blooded बोलने का कारण क्या है बेटा? ना, cold-blooded बोलने का कारण है कि इनके अंदर जो oxygenated blood और deoxygenated blood है, they both are getting mixed up together. बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया, क्लियर है. ठीक, सो यहां पर देखो, the ventricle will be pumping out mixed blood. ठीक है, और देयरफॉर ये बोथ एम्फीबियंस और रेप्टिलिया जो होगा, दे कैनॉट मेंटेन देयर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन नहीं कर सकता है. क्लियर है, क्यों? बिकॉज दे आर ऑल कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. ठीक है, अच्छी तरह समझ में आया, क्लियर है. अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जहां पे अभी हम लोग देखेंगे अबाउट द प्रॉपर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन. ठीक है, और ये बेटा आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th के अंदर जो लाइव प्रोसेस पढ़े थे, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायो, चैप्टर 6 एज योर इन एनसीईआरटी, दैट इज लाइव प्रोसेस 1. उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ये जो डबल सर्कुलेशन है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. इसके लिए सबसे पहले आपका जरूरत है एक कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट. इसके लिए सबसे पहले जो जरूरत चीज होगा, दैट इज अ कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट. और ये 4 चेम्बर्ड हार्ट किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न, बोथ योर बर्ड्स एंड मैमल्स. और बर्ड्स को ही हम लोग यहां पर एवीज भी लिख सकते हैं सबसे पहले. ठीक है, so it is the presence of a 4 chambered heart which prevents, it actually prevents the blood from getting mixed up. ठीक है, क्लियर. ब्लड को मिक्स होने से बचाता है आपका ये कंप्लीट एक 4 चेम्बर्ड हार्ट. समझ में आया? ठीक है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बेटा मैमल्स और एवीज का, देयरफॉर दे आर ऑल्सो सेड टू बी एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स. दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. भाई क्यों वार्म ब्लडेड बोल रहा हूं यहां पर? क्या खून इनके गर्म है? इसके वजह से बेटा इनके अंदर कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट होने के कारण कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग अप पॉसिबल नहीं होता है. तो ऑटोमेटिकली व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल विल बी पंपिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द बॉडी टिश्यूज, सो ऑल द बॉडी टिश्यूज विल एंश्योरली गेटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जितना उनको रिक्वायरमेंट होगा फॉर डूइंग देयर डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. क्लियर है? ठीक. एंड दिस नेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग देयर बॉडी टेम्परेचर. अगर हम लोग बोलेंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये जो कंडीशन है ये बहुत बहुत नेसेसरी कंडीशन हो जाता है. ठीक है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो बर्ड्स और मैमल्स है ये दोनों मेंटेन कर सकता है होमियोस्टैसिस.
they can maintain homeostasis. So homeostasis is a condition in which the internal processes या internal जो आपका conditions चल रहा है, be it the internal pH, be the internal body temperature, internal pressure, internal osmotic balance, ये हर चीज को एक नॉर्मलाइज्ड कंडीशन में ये अपने बॉडी के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? ठीक। अब हम लोग बात करेंगे बेटा कि कौन वाला चीज क्या क्या रिसीव कर रहा है और कहां से रिसीव कर रहा है। सो यहां पर भी देखो, दिस विल बी योर लेफ्ट ऑरिकल, सो दिस वन विल बी योर द राइट ऑरिकल, दिस वन विल बी द राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन विल बी योर द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारा हो गया सबसे पहले द 4 चेंबर्स। ठीक। तो सबसे पहले यहां पर देखो, एक अगर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन से इसको पूरा डिवाइड कर दे हार्ट को 2 हिस्सों में, तो वी कैन फाउंड एक प्रॉपर 2 कलरेशन आपका मिल रहा है। और बचपन से हमें ये कोई भी पिक्चर अगर इस रिलेटेड हमें मिलता था तो हमें 2 कलरेशन उसके अंदर मिलता था, एक रेड के अंदर डिनोट किया गया था और एक ब्लू के अंदर। तो रेड कलरेशन यही डिनोट करता है कि इस सिस्टम के अंदर पूरा का पूरा ऑक्सीजन रिच ब्लड चल रहा है, और ब्लू कंडीशन यही आपका डिनोट करता है दैट इस सेक्शन के अंदर हर जगह पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है। सो यहां पर हम लोग कैपिलरीज की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली ये कैपिलरीज आपका क्या हो जाएगा, यहां पर वही सेम चीज, यहां पे लंग्स होगा। ठीक। और ये आपका रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हो जाएगा एंड दिस इज द ब्लड कैपिलरीज। सो द सेम थिंग विल हैपन, यहां पर ऑक्सीजन आपका आएगा और CO2 वापस चला जाएगा एक्सचेंज होके। क्लियर? ये जो ऑक्सीजन दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड हो गया, एंड दिस प्यूरिफाइड ब्लड दैट इज द ऑक्सीजन रिच ब्लड, दिस इज योर द O2 रिच ब्लड, लिख सकता हूं। सो O2 रिच ब्लड इज एंटरिंग इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, और लेफ्ट ऑरिकल से ये पंप हो रहा है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, फ्रॉम विच it is entering the largest of the artery and it is moving on to the different body tissues, different body organs के पास ये आपका चला जा रहा है the oxygenated blood। क्लियर है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर रहा है, and as a result we had already discussed in the previous chapter of respiration that during the cellular respiration एक बाई प्रोडक्ट बनता है आपका, जब उसको हम लोग बोलेंगे द रेस्पिरेटरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑटोमेटिकली अब कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टू द अगेन द ब्लड वेसल्स, एंड दिस ब्लड वेसल विच विल बी जनरली टर्म्ड एज द वेना कावा। ठीक है। सो ये वेना कावा अब CO2 को लाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगा और एंटर करवाएगा कहां पे, राइट ऑरिकल के अंदर। राइट ऑरिकल से ये आपका चला जाएगा टू द राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम विच इट विल बी पम्प्ड फॉर प्यूरिफिकेशन टू द लंग्स। ठीक है। तो जल्दी से बता दो बेटा, ये जो आपका ब्लड वेसल है ये कौन सा ब्लड वेसल होगा? सबसे पहले ये आर्टरी होगा या वेन होगा? कैसे याद रखोगे ना, हमेशा याद रखना आर्टरी जो होगा वो हार्ट से ब्लड को बाहर की तरफ निकालेगा। क्या बोला मैंने? आई विल रिपीट, आर्टरी जो होगा वो हार्ट से ब्लड को लेके बाहर निकाल के लाएगा। समझ में आया? और जस्ट इसके ऑपोजिट वेन क्या होगा? अगर आपका ये हार्ट है तो वेन जो है इट विल बी ब्रिंगिंग ब्लड फ्रॉम आउटसाइड इनटू द हार्ट। हार्ट के अंदर वो ब्लड को लेके आएगा और आर्टरी ब्लड को बाहर, हार्ट से बाहर लेके जाएगा। ये समझ में आया? तो यहां पर क्या हो रहा है देखो, यहां पर आपका जो ब्लड है वो बाहर निकल रहा है हार्ट से, सो ऑटोमेटिकली दिस विल बी आर्टरी। ठीक है। और ऑब्वियसली ये ब्लड कहां पर लेके जा रहा है? टू द लंग्स, एंड मैंने बताया था लंग्स रिलेटेड जो भी होगा उसको हम लोग नाम देंगे पल्मोनरी, उसको हम लोग नाम दे देंगे पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है? ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल है देखो, दिस इज एंटरिंग इनटू द हार्ट, दिस इज एंटरिंग इनटू द हार्ट, सो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द वेन एंटरिंग इनटू द हार्ट, विच वेन कमिंग फ्रॉम द लंग्स, सो देयरफॉर इसको हम लोग नाम दे देंगे पल्मोनरी वेन। क्या नाम देंगे इसको?
इसको नाम दे देंगे पल्मोनरी वेन। क्लियर है? ठीक। और इसको डिटेल्स हम लोग देखेंगे, डिफरेंसेस पढ़ेंगे जब हम लोग ब्लड वेसल्स को और अच्छी तरह देखेंगे। ठीक, तो जल्दी से चलो यहां पे देख लेते हैं ना। यहां पर बोल रहा है कि जो राइट ऑरिकल है, राइट आर्ट्रियम, ये क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, सो देयरफॉर इट इज रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, एंड इट पासेस इट इनटू द राइट वेंट्रिकल। क्लियर? सिमिलरली लेफ्ट ऑरिकल जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, इट इज रिसीविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट पासेस इट इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एंड बोथ द वेंट्रिकल्स क्या करेगा? इट विल बी सेपरेटली विदाउट एनी काइंड ऑफ मिक्सिंग अप, they will be sending the blood in the different parts of the body. क्लियर है? लंग्स के पास भेजेगा कौन? लंग्स के पास भेजेगा द राइट वेंट्रिकल, ठीक, और लेफ्ट वेंट्रिकल टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको भेजेगा। समझ में आया? डबल सर्कुलेशन। क्लियर है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है बेटा। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है फॉर द एवीज एंड द mammals, because they are the only animal in the entire animal kingdom to possess a complete 4-chambered heart. Clear? ठीक है? Next, अब हम लोग देखो ये पूरा जो चैप्टर है, अब हम लोग एंटायरली आ गए वर्टिब्रेट्स के भी अंदर, दैट इज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स के अंदर, बिकॉज चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, सो ऑल द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस व्हिच आर गोइंग ऑन इनसाइड द ह्यूमन बींग्स। We had discussed about the human digestive system, we had discussed about the human respiratory system, or after that we will be discussing now about the human circulatory system. ठीक है, circulatory मतलब certain kind of thing which is always circulation में हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली सर्कुलेशन के अंदर जो मटेरियल आपका घूम रहा है दैट इज द फ्लूइड which is also known as the circulatory fluid. अब ये circulatory fluid क्या हो सकता है? What will be this? ना यही हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले ये आपका एक ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। वन विल बी द ब्लड वास्क्यूलर सिस्टम, एक हो जाएगा द ब्लड वास्क्यूलर सिस्टम और दूसरा हो जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, क्लियर? देखो बायो के अंदर बार बार बोलता हूं क्योंकि यू हैव जस्ट एंटर्ड लर्निंग बायो इन डिटेल। ठीक है, तो हमेशा लुक फॉर वर्ड्स। जब भी आपके पास कुछ बड़ा सा वर्ड होगा उसको ट्राई टू ब्रेक इट अप। क्लियर? और हर एक इंडिविजुअल जो आपका ब्रेकिंग वर्ड होगा उसका आप मतलब समझने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे यहां पर आपका एक वर्ड आ गया ब्लड वास्क्यूलर। ठीक है, सो ब्लड ऑब्वियसली हमें पता है द सर्कुलेटरी फ्लूइड। वास्क्यूलर, वास्क्यूलर मतलब देखो अगर मैं वास्कुलर बंडल प्लांट के अंदर बात किया था तो वहां पर ट्रांसपोर्टिंग टिश्यूज विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आइदर वाटर एंड मिनरल्स और द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, दैट इज योर जाइलम एंड फ्लोएम, उन दोनों को मिला के वास्कुलर बंडल्स बोलते थे। तो यहां पर भी आपके कुछ ऐसे नेटवर्क ऑफ वेसल्स होंगे विच विल बी हेल्पिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थिंग्स। ठीक है, क्लियर? सो दैट विल बी योर द ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ठीक है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर मेनली तीन आपके चीजें होंगे, इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, सो मेजर आपका हो जाएगा एक पंपिंग ऑर्गन विच इज योर हार्ट। सो हार्ट विल बी द मेन पंपिंग ऑर्गन विच विल बी पंपिंग इटसेल्फ एंड इट विल बी हेल्पिंग इन क्रिएटिंग अ प्रेशर। एक ऐसा प्रेशर डेवलप करेगा जिस प्रेशर से जो ब्लड है आपका वो आसानी से हर जगह पे बहुत अच्छी तरह पहुंच जाए एफिशिएंटली। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्लूइड, जो सर्कुलेशन हो रहा है जिस फ्लूइड का, द सर्कुलेटरी फ्लूइड विच इज योर द ब्लड। और ऑब्वियसली इस सर्कुलेटरी फ्लूइड को जाने के लिए, बिकॉज ह्यूमंस के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेशन चल रहा है, सो देयर विल बी अ हाईली स्पेसिफिक नेटवर्क ऑफ वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग नाम देंगे ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो फाइनली आपका यहां पर हो जाएगा जिस नेटवर्क से आपका ये ब्लड गुजरेगा उसको हम लोग ब्लड वेसल्स बोले। सबसे पहले ब्लड वेसल्स हमें पता है बहुत अच्छी तरह की तीन प्रकार के होते हैं, एक आर्टरीज और एक वेन्स और एक ऐसा जंक्शन जहां पे द आर्टरीज आर मिक्सिंग विद द वेन्स, उसको हम लोग नाम देते हैं कैपिलरीज। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस थ्री टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन डिटेल। समझ में आया अच्छी तरह? क्लियर? नेक्स्ट, अब हम लोग देखो बेटा
ब्लड को हम लोग अच्छी तरह क्लासिफाई करेंगे और सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि ब्लड क्या है ना। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या होगा? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक चीज आपका कॉमन हो जाएगा, दैट विल बी द प्रेजेंस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स का मतलब क्या है? आप लोग ग्राउंड सब्सटेंस जानते हो ना। अगर मैं एक पर्टिकुलर सेल की बात करूं तो सेल के अंदर जो उसका आपका मैट्रिक्स होगा या ग्राउंड सब्सटेंस होगा उसको हम लोग नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म, द जेली लाइक सब्सटेंस विच इज सराउंडेड ऑल ओवर द सेल, और जितने भी छोटे मोटे आपके सेल ऑर्गेनेली वगैरह होगा वो सारा चीज उस पर्टिकुलर ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर फ्लोटिंग कंडीशन में है या सस्पेंडेड कंडीशन में है। ठीक है, सो इसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स। ठीक है, तो हर एक कनेक्टिव टिश्यू, अगर मैं बोन की बात करूं, कार्टिलेज की बात करूं, ठीक है, एडिपोज टिश्यू की बात करूं, सो दे आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज और सबके अपने अपने मैट्रिक्स होता है। क्लियर? ठीक है, सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस कौन होगा ना, जिसके अंदर प्लाज्मा विल बी द मैट्रिक्स। प्लाज्मा क्या हो जाएगा? यही बन जाएगा मैट्रिक्स और द ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, क्लियर? अब सपोज करो, क्योंकि मैंने यहां पर बोला है कि ये मैट्रिक्स कैसा होगा, इट विल बी अ फ्लूइड मैट्रिक्स। तो आप एक नदी को पकड़ लो या एक पाइप जिससे आपके कुछ चीजें आ रहा है फ्लोटिंग कंडीशन में, तो जो पानी होगा दैट विल बी द नॉन लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट है वाटर। ठीक है, सो उस वाटर जो फ्लोट कर रहा है उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मछली हो सकते हैं, कुछ आपके श्रिम्स हो सकते हैं, कुछ आपके फाइटोप्लैंक्टन्स हो सकते हैं। ठीक है, जो भी उसके अंदर आपका फ्लोट करके आ रहा है दे आर द लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, which are remaining in a floating condition and coming through the water। तो ठीक वैसे ही हम लोग यहां पर भी डिस्कस करेंगे प्लाज्मा को। प्लाज्मा को हम लोग पकड़ लेते हैं वही पाइप के थ्रू जो पानी बह रहा है, द फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक है, और उस फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर जो लिविंग कंपोनेंट्स होंगे, मतलब कुछ सेल्स होंगे जो रिमेन सस्पेंडेड इन दैट प्लाज्मा, उस लिविंग कंपोनेंट्स को हम लोग नाम देंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या नाम देंगे उसको हम लोग? उसको नाम दे देंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सो दे आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ठीक है, और ऑब्वियसली लिविंग कंपोनेंट अगर होगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर सेल होगा। सो दिस फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर जनरली ऑफ 3 टाइप ऑफ सेल्स जो पहले से हम लोग पढ़ के आए हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, RBC मतलब द रेड ब्लड कॉर्पसल्स, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और आपके प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसके साथ बेटा एक दूसरा नाम भी हमें याद रखना पड़ेगा, वो भी चलो फटाफट जान लेते हैं। जो RBC है इसको हम लोग याद रखेंगे एज योर एरिथ्रोसाइट्स। इसको क्या नाम देंगे हम लोग? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, क्लियर? अब देखो ये एक नया शब्द आपके लिए, एरिथ्रो जो होगा, एरिथ्रो का मतलब ही है रेड कलरेशन। ठीक, चलो जब हम लोग प्लांट किंगडम के अंदर देखेंगे तो प्लांट किंगडम के अंदर बेटा एक एल्गी होता है। ठीक है, नॉर्मली एल्गी ग्रीन एल्गी होगा, बट रेड एल्गी करके भी एक एल्गी पाया जाता है, और उस एल्गी के अंदर जो पिगमेंट होगा जिसके वजह से उस एल्गी का कलरेशन रेड कलरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइकोएरिथ्रिन। सो ये जो एरिथ्रिन कंपाउंड है दैट इज रिलेटेड टू द रेड कलरेशन। क्लियर? और इसीलिए देखो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनको हम लोग एरिथ्रोसाइट भी नाम देते हैं। साइट का मतलब है सेल, तो सेल कंटेनिंग द रेड कलरेशन, देयरफॉर दे आर नोन एज द रेड ब्लड कॉर्पसल्स और द एरिथ्रोसाइट्स। क्लियर? सिमिलरली अब हम लोग बात करेंगे WBC के बारे में। WBC व्हाइट। ठीक है, अब आ जाओ सेल के पास। एक टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेली था प्लास्टिड्स, याद होगा सबको, और प्लास्टिड्स के अंदर भी आपके जो कलरलेस प्लास्टिड्स है उसको हम लोग क्या नाम देते थे? ल्यूकोप्लास्ट्स। ठीक है, तो ये जो ल्यूको शब्द है, इस ल्यूको शब्द का मतलब ही होगा रिलेटेड टू द व्हाइट कलरेशन और द कलरलेस
आपका पोजीशन, ठीक है। सो यहां पर व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को हम लोग नॉर्मली नाम देंगे ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूको का मतलब ही होगा यहां पर आइदर व्हाइट और कलरलेस, ठीक। नेक्स्ट यहां पर प्लेटेलेट्स। अब देखो प्लेटेलेट्स का कोई कलरेशन वगैरह उतना ज्यादा हमें याद नहीं है, बट प्लेटेलेट्स व्हाई आर इंपॉर्टेंट ना, दे हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड को क्लॉट करवाने में मदद करता है। सपोज करो आपके कोई टिश्यू इंजर हो जाता है और वहां से प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, तो कुछ देर बाद वहां पर आपके ब्लीडिंग बंद हो जाता है क्योंकि वहां पर एक ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्लियर? कैसे करके होगा हम लोग आगे देखेंगे, क्लियर। हर चीज आपको हमें डिटेलली पढ़ना है। सो वो जो ब्लड क्लॉट हो रहा है बेटा, दैट इज ड्यू टू अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट या विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द प्लेटेलेट्स, और उसको हम लोग नाम देते हैं थ्रोम्बिन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? थ्रोम्बिन। तो उसके ऊपर बेस करके प्लेटेलेट्स का नामकरण हो जाता है और जिसको हम लोग नाम देंगे थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स क्या हो जाएगा? थ्रोम्बिन कंटेनिंग प्रोटीन विच इज रिलीज फ्रॉम दो सेल्स, जिसको हम लोग नाम देंगे थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर है? सो वी हैव एरिथ्रोसाइट्स, वी हैव ल्यूकोसाइट्स एंड वी हैव थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक। अब ये जो WBC है बेटा, ये बहुत ही वाइड प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्लियर? ये इसका नेचर बहुत ही वाइड वास्ट डिफरेंशिएटिंग पैटर्न आपका फॉलो किया जाता है WBC के अंदर, एंड देयरफॉर दे आर अगेन डिफरेंशिएटेड इनटू ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। अब देखो एक नया नाम दूसरा, चलो ग्रैन्युलोसाइट्स, साइट्स का मतलब हमें पता है रिलेटेड टू सेल। ग्रैन्युलर जो शब्द होगा दैट इज डिपेंडिंग ऑन ग्रैन्युलर सब्सटेंसेस। ग्रैन्युलर सब्सटेंसेस आप लोग जानते हो बेटा, ग्रैन्युलर सब्सटेंसेस मतलब दानेदार पार्टिकल्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहां पर। तो अगर इस पर्टिकुलर WBC के स्ट्रक्चर के अंदर दानेदार पार्टिकल्स प्रेजेंट हो जो हमें बाहर से नजर आ जाएगा, उन सब को क्लब करके मैं लिख सकता हूं ग्रैन्युलोसाइट्स। और अगर दानेदार वाला पोर्शन नहीं होगा, सो एब्सेंस ऑफ ग्रैन्युलर सब्सटेंस, उसको हम लोग नाम दे देंगे एग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। सो यहां पर ए का मतलब हो जाता है एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ ग्रैन्युलर सब्सटेंसेस, ठीक है। ग्रैन्युलर सब्सटेंसेस का एब्सेंट हो जाना, जिसकी वजह से ये बन जाएगा आपका एग्रैन्युलोसाइट। क्लियर है? ठीक। पहले चलो देख लेते हैं एग्रैन्युलोसाइट्स क्या क्या होगा ना। एग्रैन्युलोसाइट्स अगेन फर्दर डिवाइड होगा टू टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। एक जिसको हम लोग बोलेंगे लिम्फोसाइट्स, देखो सर्टेन रिलेटेड टू द लिम्फेटिक सिस्टम देखेंगे अभी, और एक हो जाएगा मोनोसाइट। सबसे पहले याद रखना, ये जो मोनोसाइट है बेटा, दिस इज द लार्जेस्ट WBC। मोनोसाइट विल बी द लार्जेस्ट WBC, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में और डिटेल आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप के पाया जाता है और उनके नाम इस हिसाब से फिक्स होता है कि कहां पर ये लिम्फोसाइट्स बन रहा है, वेयर आर दे बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है। और जिसके ऊपर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स सबके दो अलग अलग नाम आ जाता है। बी का मतलब होता है बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर आपका जो लिम्फोसाइटिक सेल्स पैदा हो रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग टी बात करते हैं, सो इट इज द थाइमस, जिसके अंदर आपके लिम्फोसाइटिक सेल्स बन रहा है। क्लियर है? ठीक है। आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ग्रैन्युलर सब्सटेंसेस, और ग्रैन्युलोसाइट्स जो होगा वो भी तीन प्रकार के होंगे, दैट इज द न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो ये तीन तरीके के हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट्स है जो हमें याद रखना है, ठीक है। इनके डिटेल भी हम लोग आगे देखेंगे, इसके शेप वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है। सिर्फ इतना याद रख लो कि जो आपके ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स है, ये दोनों मिलाके क्या बनेगा ना, ये दोनों मिलाके दे विल बी हेल्पिंग इन सीक्रेटिंग एंटीबॉडीज, दे विल बी हेल्पिंग इन सीक्रेटिंग एंटीबॉडीज। अब बोलोगे सर एंटीबॉडीज क्या है? इतना याद रख लो, ये आपका
एक स्पेशल टास्क फोर्स है। क्या बोला मैंने? ये एक स्पेशल टास्क फोर्स है जो प्राइमरी आपका प्रिवेंशन का काम करेगा अगर कोई पैथोजन या एंटीजन बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। क्लियर है? ठीक है। और याद रखना, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसका भी कहीं ना कहीं काम यही होगा टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स, या जिसको हम लोग पैथोजेंस भी बोल सकते हैं। और इस पैथोजेंस के अंदर जनरली क्या होता है? एंटीजेंस होते हैं। ठीक है, क्लियर? सो ये एंटीबॉडीज और एंटीजेंस के बीच बहुत भयंकर एक युद्ध होता है या बैटल होता है। अगर एंटीबॉडीज इस एंटीजन को फैलने से रोक दिया, so automatically our body is getting prevented against any kinds of pathogen या antigen या infection. क्लियर है? और अगर नहीं हुआ, so automatically this will be now spreading throughout the body, causing the infection at a larger scale. और जब हम लोग फिर बीमार पड़ जाएंगे या we will be falling in. समझ में आया? ठीक है। सो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग जो आपके सेल्स होगा, दैट विल बी विच टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स? द बी एंड द टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है। फाइनली हम लोग यहां पर आ जाते हैं बेटा और बात करते हैं हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले यहां पर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये जो आपका सर्कुलेटरी फ्लूइड है लिम्फ, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? इसको नाम देते हैं हम लोग टिश्यू फ्लूइड, जो टिश्यू से निकलता है। क्लियर? और ये टिश्यू फ्लूइड जैसे ही निकला, तुरंत इसको एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर से पास होना है। ठीक है। सो वो आपके वेसल्स को हम लोग नाम देंगे लिम्फ वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, क्लियर है? और यहां पर एक नया नाम भी आ जाएगा, लिम्फ नोड्स। तो ये लिम्फ नोड्स क्या है बेटा? न दे विल बी प्रोवाइडिंग द एरिया। ये क्या प्रोवाइड करेगा? दे विल बी प्रोवाइडिंग एरिया फॉर इंटरैक्शन ऑफ किसका? ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरैक्शन हो रहा है, तो ये युद्ध चल रहा है, तो एक बैटल ग्राउंड की तो आवश्यकता होगा। तो वो बैटल ग्राउंड कौन प्रोवाइड करेगा? वो बैटल ग्राउंड प्रोवाइड करेगा, वो जगह जहां पे इन दोनों का आपका युद्ध हो सकता है, वो जगह पैदा करेगा कौन? लिम्फ नोड्स। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। ये पूरा वाला जो आपका चार्ट है, इसको अच्छी तरह याद रखना है। ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे एक एक चीज, जैसे कि हम लोग अब शुरू करेंगे विथ योर प्लाज्मा। ठीक है। सो देखो फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। जो हम लोग ब्लड की बात कर रहे थे, ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या होगा? व्हाट विल बी द कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड? ना हमें पता ही चल गया था कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होगा और जो लिविंग कंपोनेंट्स है, दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स विल बी देयर। ठीक है। प्लाज्मा विल बी अराउंड 55% विच विल बी प्रेजेंट इनसाइड योर ब्लड। ठीक है। जो पूरा ब्लड होगा द सर्कुलेटरी फ्लूइड, उसके अंदर 55% हो जाएगा आपका ब्लड प्लाज्मा। वेरेज अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करूं, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ल्यूकोसाइट्स, सॉरी प्लेटलेट्स, ठीक, दैट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 45%। ठीक है, क्लियर? तो अब प्लाज्मा कैसा होगा, इसका कलरेशन कैसा है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो कलरेशन याद रखना, इट इज स्ट्रॉ कलर्ड। स्ट्रॉ कलरेशन का मतलब क्या है ना बेटा? जब गेहूं बिल्कुल सूख जाता है, जब पैडी बिल्कुल सूख जाता है, तो उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, वो सूखे हुए जो टहनियां होते हैं उनको हम लोग स्ट्रॉ नाम देते हैं। ठीक है, क्लियर है? और यहां पर स्ट्रॉ इज कैसा कलर है इसका ना? येलोइश, ऑरेंजिश या ब्राउनिश कलरेशन का होता है। तो ठीक उसी कलरेशन का हो जाएगा आपका द प्लाज्मा। ठीक है, क्लियर है? सो इट इज स्ट्रॉ कलर्ड। और इसका आपका पीएच कैसा है? ये क्या एसिडिक होगा, न्यूट्रल होगा, एल्कलाइन होगा? ना हमें पीएच स्केल पता है। अगर 7 न्यूट्रल है तो 7 के अगर नीचे हो जाएगा आपका
तो एसिडिक कंडीशन होगा, 7 के ऊपर चला जाता है तो हो जाता है आपका एल्कालाइन या बेसिक कंडीशन। तो यहां पर देखो जो प्लाज्मा है, यहां पर बोला गया है कि इसका पीएच जो है ये 7.4 है, तो जस्ट 0.4 ज्यादा होगा फ्रॉम द न्यूट्रल, सो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइटली एल्कालाइन। ठीक है, और पहले ही बताया था ये आपका जो ब्लड है इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर मैट्रिक्स का काम होगा, जिसके अंदर आपका ग्राउंड सब्सटेंस होगा। ठीक, और उसके अंदर जो प्लाज्मा है दिस विल बी बिकमिंग द मैट्रिक्स विच विल बी योर फ्लूइड इन नेचर। तो देखो ये एक नॉर्मली ब्लड वेसल दिखाया हुआ है, ये जो कलरेशन यहां पर आपका दिख रहा है, ये जो कलरेशन यहां पर दिख रहा है दिस इज द स्ट्रॉ कलरेशन। देखो एक येलोइश ऑरेंजिश टाइप का कलरेशन है, सो इसी को हम लोग नाम देंगे प्लाज्मा, दैट इज द स्ट्रॉ कलर्ड मैट्रिक्स। क्लियर? और इसके अंदर ये जो आपका पानी जैसा निकल के आ रहा है, इसके अंदर जी ये भरपूर मात्रा में आपके रेड सेल्स दिखाई दे रहा है। दीज आर ऑल योर द रेड ब्लड सेल्स विच आर फाउंड सबमर्ज्ड इन दिस प्लाज्मा। ठीक है, ये जो कुछ आपके मैक्रोफेजेस, कुछ आपके ऐसे वायलेट कलर के जो सेल्स नजर आ रहा है, दीज आर नथिंग बट द डिफरेंट WBC। ये सारे के सारे क्या हो जाएगा? दे आर द डिफरेंट WBC। और बिल्कुल ये छोटे वाले प्रकार के जो आपके सेल्स है, ठीक है, ये जो सेल्स है बेटा इनको हम लोग नाम देंगे प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसके बारे में और डिटेल हमें देखना है आने वाले क्लासेस में। तब तक ये स्लाइड्स आप लेके और इसका एक पूरा अच्छी तरह चार्ट अपने नोटबुक के अंदर बना लेना। कल हम लोग अब शुरू करेंगे विथ प्लाज्मा एज आवर टॉपिक। ठीक है, क्लियर? तो ये बहुत अच्छी तरह कर लेना बेटा। वी विल बी अगेन मीटिंग टुमारो एट आपका 8:45 AM। ठीक, सो टिल देन स्टे वेल, थैंक यू।